Hello everyone. Now we'll be starting with accounting for holding companies part 2. Like in the previous video, we discussed about the wholly owned subsidiary companies in which holding company acquires 100% shares in subsidiary companies. But in today's class, we'll be discussing when there would be partly owned subsidiary. Partly owned subsidiary means that 100% share is not required. More than 50% share, maybe 55, 60, 70, 75% share is required. And remaining portion, maybe 20, 25, 30% is still with the subsidiary company. So I told you whenever there would not be 100% acquisition, so there would be a topic or there would be a term known as minority interest. So minority interest means the remaining portion which is not acquired by the holding company would be considered as minority shareholders और minority interest. जो minority shareholders कंपनी में होंगे तो उन्हीं का जो इंटरेस्ट होता है सब्सिडी कंपनी में उसी को हम बोलते हैं minority interest. Again, we will have the same consideration, same questions format, and but there would be new term today, minority interest. Like in the previous video, we discussed one question like at par 5 lakh के shares 5 lakh में खरीदे. Second case में we discussed the concept of cost of control or goodwill. And in third case we discussed for capital reserve. Similarly, we'll be discussing three questions also, but there would be one more term which is known as minority interest. So before starting, let me make it clear कि minority interest होता क्या है, उसको कैसे calculate करते हैं. So you can see in case of partly owned subsidiaries, when the holding company does not own 100% shares of subsidiary company, the subsidiary company is known as partly owned subsidiary. Suppose H Limited acquires 75% of shares, so remaining 25% shares will be owned by outsiders or other persons. So the interest of outside person is known as minority interest. Very important. And is shown, लिखा हुआ इसका treatment कैसे होगा, is shown as a separate item in consolidated balance sheet between share capital and reserves and surplus. ये मैं आपको बताऊंगा कि जैसे हम पहले शेयर कैपिटल लिखते हैं और रिजर्व्स एंड सरप्लस लिखते हैं, उसके बीच में एक नया पॉइंट आ जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट. क्यों? क्योंकि है तो ये शेयर होल्डर्स ही, लेकिन ये होल्डिंग कंपनी के अब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाती कौन है? होल्डिंग कंपनी बनाती है. अब ये जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट है ये या माइनॉरिटी जो शेयर होल्डर्स है ये होल्डिंग कंपनी के तो है नहीं, लेकिन है तो शेयर होल्डर्स ही. तो इसलिए हम इसका एक सेकंड हेड बना देते हैं शेयर कैपिटल के नीचे ही, जिसके अंदर हम लिखेंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट. उसके बाद हम रिजर्व एंड सरप्लस लिखना शुरू करेंगे. अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट को मिलता क्या क्या है जरा देखिए. Thus, minority interest is the proportion of subsidiary company's net assets, that is shareholders fund, which belongs to minority shareholders. In other words, it is the amount payable to outsiders in respect of the share capital, their accumulated profits to the extent of their holding. मतलब मान लीजिए उनका 25% होल्ड है तो 25% प्रॉफिट्स पे भी उनका शेयर बनता है. Hence, minority share interest will consist of share capital, रिजर्व्स. अब यहाँ पर एक प्री एक्विजिशन पोस्ट एक्विजिशन आया हुआ है, ये हम थर्ड फोर्थ वीडियो में डिस्कस करेंगे. अभी इसमें कोई नहीं है. प्री एक्विजिशन मतलब एक्विजिशन से पहले, पोस्ट एक्विजिशन में एक्विजिशन के बाद. बट आज की क्लास, आज की वीडियो में और आज की क्लास में ये वाला पॉइंट नहीं है. अभी अभी नॉर्मल चलेगा. देन देयर प्रोपोर्शनेट शेयर इन इन द क्रेडिट बैलेंस पीएनएल. मतलब अगर कोई, वही सेम पॉइंट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का किस किस में इंटरेस्ट होगा और कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. एक तो उनके शेयर कैपिटल से, रिजर्व से, और अगर कोई पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है तो वो, अगर कोई माइनस लॉस होगा तो वो भी डिडक्ट हो जाएगा. सो लेट अस स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट. तो यू कैन चेक आउट द फोर्थ पॉइंट और फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ इलस्ट्रेशन. हमने लास्ट क्लास में थर्ड की, तीन की थी, आज फोर्थ क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं. Same question you can see, like the following are the balance sheet of HNS Limited. I think values are all more or less same only. You can check out what is the difference by looking at the question itself. होल्डिंग कंपनी, यहाँ पर देखिए होल्डिंग कंपनी का शेयर कैपिटल 20 लाख और सब्सिडी का 5 लाख, जैसे पहले क्वेश्चन में दे रखा था या पहले वाली वीडियो में था. अब यहाँ पर आप चेक कीजिए, जब जो फर्स्ट वीडियो था वहां पर इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ था 100% शेयर्स, लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ कितना परसेंट शेयर बाय किया एस लिमिटेड में? 60%.
तो यू कैन चेकआउट कि होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी में 60% के शेयर्स बाय किए हैं। अगर आप 5 लाख का 60% कैलकुलेट भी करेंगे तो 3 लाख रुपीज ही बनेगा। तो इसका मतलब मुझे सब्सिडरी कंपनी की अगर मैंने 60% शेयर लिए हैं तो 3 लाख रुपए के मैंने 3 लाख रुपए में लिए हैं, तो वो पार का ही केस हो गया कि 3 लाख के शेयर मैंने 3 लाख रुपए में ही खरीदे। प्लस अब आप चेक कर सकते हो अगर मैंने 60% खरीदा है तो रिमेनिंग 40% किसी और के पास होगा, आउटसाइडर्स के पास। तो यहाँ पर माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना परसेंट हो गया? 40%। 40% किसका? 5 लाख का। लेट मी शो यू द ट्रीटमेंट। I think this is the format of the balance sheet. You are very well aware. See, I was telling you one thing कि जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट होता है वो इन दोनों के बीच में आ जाता है। आप चेक कीजिए, शेयर कैप शेयर होल्डर फंड्स के नीचे माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ गया, इसकी वर्किंग में बीच में आएगा। आप चेक कीजिए जरा, सेम इन्होंने लिखा हुआ है शेयर कैपिटल इशूड सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप 2 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुली पेड अप 20 लाख रुपीज। 5 लाख वो भी नहीं आएगा क्योंकि वो हमारा पार्ट है कुछ और कुछ पार्ट माइनॉरिटी इंटरेस्ट का है। सेकेंड पॉइंट में यू कैन चेक आउट रिजर्व्स एंड सरप्लस। So 6 lakh reserves and surplus is the value which is coming here. Then you can check out, इसको बीच में भी लिख देते हैं लेकिन प्रेफर करना कि इसको एंड में लिखना रिजर्व्स एंड सरप्लस के बाद। माइनॉरिटी इंटरेस्ट, अभी आपने कहा कि 60% शेयर होल्डिंग कंपनी ने खरीद लिया, तो रिमेनिंग 40% किसके पास होगा? सो माइनॉरिटी इंटरेस्ट के हमने कहा 5 लाख इंटू 40/100 2 लाख, तो 2 लाख रुपीज आ गया। ये नोट नंबर 1 भी लिखा हुआ है इन्होंने, सेम वही पॉइंट बताया हुआ है कि 40% जो होगा वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट होगा। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो रिजर्व्स एंड प्रॉफिट कोई है ही नहीं सब्सिडरी कंपनी का, इसलिए सिर्फ हमने किसकी वैल्यू ली है? शेयर कैपिटल की। मैंने भी आपको बताया था माइनॉरिटी इंटरेस्ट को 3 वैल्यूज मिल सकती है, शेयर कैपिटल की, रिजर्व्स एंड सरप्लस की और प्रॉफिट एंड लॉस की। अगर आप चेक करेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस की जो 6 लाख दे रखा है ये सिर्फ होल्डिंग कंपनी का दिया हुआ, सब्सिडरी कंपनी का नहीं दिया हुआ। अगर सब्सिडरी कंपनी में कोई प्रॉफिट या रिजर्व होता तो उसको मिलाकर हम 40% कैलकुलेट करते हैं, तो ये आ गया 2 लाख। तो अभी चेक कीजिए, सेम हमने लिखा शेयर कैपिटल 20 लाख, रिजर्व्स एंड सरप्लस 6 लाख। ये शेयर होल्डर्स फंड के नेक्स्ट पॉइंट में आ गया, सेकंड पॉइंट में माइनॉरिटी इंटरेस्ट 2 लाख रुपीज। सेम रिमेनिंग क्वेश्चन विल रिमेन सेम। देन यू विल बी प्रिपेयरिंग ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स में आपने दोनों के वैल्यूज को प्लस किया और ऐड करके लिख दिया, तो टोटल बन गया 30,20,000। सिमिलरली फिक्स एसेट दोनों के प्लस किए और आपने ऐड करके लिख दिए, तो ये आपका आ गया 30,20,000। तो आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज लिटिल बिट क्लियर कि हाउ यू हैव टू डू इट। फाइन। और ये देखिए इसमें लिखा भी हुआ है, इन केस ऑफ पार्टली ओन सब्सिडी द मेथड ऑफ कंसोलिडेशन इज सेम, द होल ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज विल बी ट्रांसफर्ड इन एडिशन टू शोइंग द माइनॉरिटी इंटरेस्ट ऑन द लायबिलिटी साइड। हमने लायबिलिटी साइड पे ही माइनॉरिटी इंटरेस्ट को शो किया है, यू कैन चेक आउट आफ्टर रिजर्व्स एंड सरप्लस ओनली। क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू है 26 लाख रुपए की, 26 लाख रुपए की होल्डिंग कंपनी की, तो ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट कौन सी कंपनी का हो गया? सब्सिडरी कंपनी का, जो सब्सिडरी कंपनी के रिमेनिंग शेयर होल्डर्स हो गए, इसलिए हमने इसको शेयर होल्डर फंड में नहीं डाला, इसके नीचे डाला है। आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज मोर और लेस सेम, सिर्फ एक नया पॉइंट आ गया माइनॉरिटी इंटरेस्ट का। देन now we'll be discussing the same method. First of all, from the question all itself we'll be identifying कि goodwill है या capital reserves है। See, question is again same, the values are almost same. You can check out 20 lakh, 5 lakh, 6 lakh, same values are given to you and they have given the same condition again कि investment 60% किया at cost। cost का मतलब यही हो गया कि 5 लाख का 60% कितना हो, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में था 3 लाख रुपीज। बट यू कैन चेक आउट कि मैंने इसके 3 लाख शेयर में अगर इन्वेस्ट किया है और मुझे इन्वेस्टमेंट करनी कितने की पड़ी, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि आई एम पेइंग मोर, 5 लाख का 60% 3 लाख रुपीज हुआ, बट हाउ मच आई एम इन्वेस्टिंग? 20,000, 20,000 एक्स्ट्रा। सो 20,000 वुड बी पार्ट ऑफ गुडविल क्योंकि हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, प्लस 5 लाख में से 3 लाख हमने बाय किए हैं, लेकिन हमने 3 लाख रुपए, 3 लाख के शेयर कितने में बाय किए? 320 में। तो इस क्वेश्चन में भी 40% शेयर किसका होगा? माइनॉरिटी का। तो ट्रीटमेंट वुड बी सेम जो हमने फोर्थ क्वेश्चन में या फोर्थ इलस्ट्रेशन में डिस्कस किया था, सब कुछ सेम रहेगा, बट अब एक और नया पॉइंट बन जाएगा नीचे, इंटेंजिबल एसेट दैट इज गुडविल। रेस्ट रिमेन क्वेश्चन विल रिमेन सेम ओनली, यू कैन चेक आउट फ्रॉम हेयर ऑल्सो।
let me discuss with the notes to accounts first because that will give you a better clarity. Issued, subscribed and fully paid up 2 lakh shares of rupees 10 each, fully paid up 20 lakh. Reserves and surplus simple 6 lakh. जैसे आपने फोर्थ इलस्ट्रेशन में डिस्कस किया था कि 60% अगर मैंने बाय किया तो 40% किसका होगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का, तो 20 लाख रुपीज आ गया, सॉरी 2 लाख रुपीज आ गया, 5 लाख का 40%. कोई रिजर्व इसमें सब्सिडरी की आई नहीं तो होगा ही नहीं. सेम ट्रेड पेबल्स यू कैन चेक आउट, दोनों को प्लस करके लिख दिया. टेंजिबल एसेट्स दोनों को हमने यहाँ पर प्लस करके लिख दिया. और एक नया पॉइंट आप चेक कर सकते हैं, इन्होंने यहाँ कैलकुलेट करके भी दिखाया बट आपको पता भी है, अगर मैंने 60% शेयर एस लिमिटेड के बाय करने थे तो मुझे कितने के बाय करने चाहिए थे, 3 लाख रुपीज के, जबकि मैंने अमाउंट पे कितना करा है, 3,20,000. तो ऑटोमेटिकली मैंने कितना एक्स्ट्रा पे किया है, गुडविल. और मैं क्यों पे करूंगा एक्स्ट्रा, हो सकता है क्योंकि अगर जब भी मैं एक्स्ट्रा अमाउंट पे करता हूँ तो उस कंपनी की गुडविल होगी जिसको मैं अपनी सब्सिडरी बना रहा हूँ. तो यहाँ पर आप चेक कीजिए, जो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, एक नया पॉइंट और बन जाएगा, गुडविल और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, दैट इज 20,000. नाउ कमिंग ऑन टू द बैलेंस शीट, सेम वैल्यूज, share capital, reserves and surplus in the same manner, minority interest 2 lakh rupees, current liabilities, trade payables, I think it is given to you same manner, और same tangible assets and intangible assets. तो इस क्वेश्चन में एक नया पॉइंट आ गया, दैट इज इंटेंजिबल एसेट्स विद माइनॉरिटी इंटरेस्ट. आई थिंक टिल नाउ द पॉइंट इज वेरी मच क्लियर. वी आर मूविंग इन द सेम मैनर ओनली, कि जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था, फर्स्ट क्वेश्चन पार पे, यहाँ पर भी पार था, माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ गया साथ में. सेकंड क्वेश्चन वहां पर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का था, यहाँ पर भी कॉस्ट ऑफ कंट्रोल हो गया प्लस विद माइनॉरिटी इंटरेस्ट. एंड थर्ड क्वेश्चन अगेन अभी आपको समझ में आइए क्या होगा, फर्स्ट पार था, दूसरा गुडविल था, तो तीसरा क्या होगा, कैपिटल रिजर्व with the help of with the concept of minority interest only. So I hope the concept is clear. आपको सारी क्वेश्चन सेम लगेंगे, सारी वैल्यूज आपको सेम लग रही हैं. चैप्टर बड़ा इजी है, लेकिन चैप्टर अभी थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो से थोड़ा सी कैलकुलेशन इंक्रीज हो जाएगी, तो बेटर यही है कि आप इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लें. So now let us moving on to the last question in this video. So let us read out the question very nicely. The following are the balances of H&S Limited as at 31st March 2011. Now you can check out, same share capital, equity and liabilities is given to you, reserves is given to you, trade payables is given to you, 60% मैंने इन्वेस्टमेंट बाय, ये हमेशा कॉस्ट ही होगा, ऐसे लिखा ना हो ना लिखा हो बात एक ही है, और सन्ड्री एसेट इज गिवन टू यू. अगेन 5 लाख का 60% 3 लाख, आपने एस लिमिटेड के 3 लाख शेयर्स खरीदे, लेकिन आपने अमाउंट कितना पे किया, 280. तो इसका मतलब यू आर पेइंग लेस. और जब भी आप कम पे करते हो अमाउंट तो वो किसका पार्ट बन जाता है, कैपिटल रिजर्व का. और रिमेनिंग 40% किसका होगा, नहीं कैपिटल रिजर्व में 40% नहीं, 40% जो शेयर्स है वो किसके पास है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट. तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट अपने आप नॉर्मली आएगा, 5 लाख का 40% 2 लाख. और इस जैसे लास्ट क्वेश्चन में गुडविल आई थी, इस क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, कैपिटल रिजर्व. Format balance sheet, I think the concept is clear. So let me first discuss with the notes to accounts. Same issued, subscribed and fully paid up 2 lakh shares of rupees 10 each, fully paid up 20 लाख आ गया. लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि हमारा रिजर्व्स कैलकुलेट होकर आ रहा है, यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो, आपको मिल रहा है. अमाउंट पेड, हमने अमाउंट कितना पे किया है, 2,80,000, जबकि उसके शेयर्स की वैल्यू थी कितनी, 3 लाख. तो 20,000 का हमारा कौन सा रिजर्व हो गया, कैपिटल रिजर्व. तो हाँ यही आपने सेकंड पॉइंट में आप चेक कीजिए, लिखा हुआ है कैपिटल रिजर्व 20,000, अदर रिजर्व 6 लाख. तो रिजर्व की वैल्यू होगी 6,20,000. तो हमारा नोट नंबर 2 बन गया. माइनॉरिटी इंटरेस्ट का इस वाले रिजर्व से कोई लेना देना नहीं होता, तो 40% ऑफ 5 लाख सीधा 2 लाख, तो 2 लाख माइनॉरिटी इंटरेस्ट हो गया. सेम जो आप पिछले वीडियोज में भी करते आ रहे हैं और पिछले क्वेश्चन में भी करा आपने, ट्रेड पेबल्स को प्लस किया सेम अमाउंट से, टेंजिबल एसेट्स को प्लस किया. नाउ अगेन इन दिस पॉइंट कोई गुडविल थी नहीं किया, तो गुडविल होगा या कैपिटल रिजर्व होगा, तो इसलिए इंटेंजिबल एसेट्स नहीं आएंगे. तो आप यहाँ पर चेक कीजिए, सेम वैल्यूज दे हैव कॉपीड. शेयर कैपिटल 20 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 6,20,000, माइनॉरिटी इंटरेस्ट 2 लाख, करंट लायबिलिटीज और ट्रेड पेबल्स दोनों को प्लस करके, सिमिलरली दे हैव एडेड विद नॉन करंट एसेट फिक्स्ड एज अ टेंजिबल, दैट इज दिस पॉइंट. So this is the concept of minority interest. So we discussed the same format
the same type of questions like we discussed in video 1, but video 1 में minority interest का concept नहीं था. First video we discussed for wholly owned subsidiary company and in this case we discussed for partly owned. अभी इस वाले क्वेश्चन में या इस वाली वीडियो में आपको रिजर्व्स और पीएनएल की कोई एडजस्टमेंट नहीं दिखी क्योंकि यहाँ थी ही नहीं. सब्सिडरी कंपनी का कोई भी प्रॉफिट या रिजर्व्स नहीं था, तो उसमें उनका कोई शेयर बनता नहीं है. तो अभी हमने सिर्फ किसको डिवाइड किया था, शेयर कैपिटल को डिवाइड किया. और माइनॉरिटी इंटरेस्ट कब आएगा, पहले शेयर होल्डर्स फंड लिखने के बाद शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, फिर आपका नॉन करंट लाइबिलिटीज या डिबेंचर से पहले का पॉइंट बन जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट. सो माइनॉरिटी इंटरेस्ट जितना परसेंट आपने एक्वायर नहीं किया वो हमारा माइनॉरिटी इंटरेस्ट का पार्ट होगा. अगेन इसमें एक केस नॉर्मल है, देन सेकेंड केस इज फॉर गुडविल और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल. फिफ्थ दैट इज द फिफ्थ क्वेश्चन आई थिंक. हाँ, फिफ्थ क्वेश्चन इज कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, ये रहा 20,000 वाला इंटेंजिबल एसेट्स में. एंड सिक्स क्वेश्चन इज बेसिकली फॉर योर कैपिटल रिजर्व, क्योंकि इन दैट क्वेश्चन यू आर पेइंग लेस अमाउंट. Till here, it is very important that till video 2, you should be very well aware about why this particular item is coming with this amount here or there, because from next video or from next part of the chapter, the questions will become little bit complicated. Till now, this is the basic concept which we are discussing, because in next videos, अब वहाँ पर reserves, profit and loss और नई terms आ जाएंगी जैसे pre acquisition, post acquisition. So video 1 and video 2 you have to be thorough before moving on to video 3 or video 4. If you have any doubts, you're free to contact. Thank you very much.